Hello and very good morning to all my dear students. How are you? Myself Tosip sir. I welcome you all in this beautiful channel Padhai Ka Kavach. As you know students, in a 9th standard lecture, we are on a unit number 8 motion, and in our previous lecture we have discussed about the graphical representation of motion. Today we are going to discuss about the equation of motion. मोशन के इक्वेशन जो आपको आगे जाके 11th स्टैंडर्ड के अंदर भी हेल्प करेंगे. मैनी एग्जाम्पल कैलकुलेशंस आर कमिंग फ्रॉम दिस सेक्शन. मोशन के इक्वेशन, सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि मोशन किसे कहते हैं. As we defined in our earlier lectures, that if the object is changing its position with respect to time, then we can call that the object is in motion. उसके बाद हमने एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ा हुआ था. एक्सेलरेशन बेसिकली इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. whenever the object will change its velocity with respect to time, then the object is in an acceleration we can call. मोशन के इक्वेशन कब लागू किए जा सकते हैं, तो चलिए आइए देखते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में. जब भी कोई ऑब्जेक्ट की एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट है, अगर कोई ऑब्जेक्ट एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन से आगे बढ़ रहा है, यानी कि उसकी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी जो है वो ज़ीरो है, क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो जाएगा तो चेंज ऑफ वेलोसिटी विल बी ज़ीरो. सो एट दैट टाइम we can use the equation of motion. सबसे पहला equation of motion जो है, we will study the derivation of this respective equations in our further section. First equation is v is equals to u plus at. Later on I will tell you what is the meaning of v, u, a and t. Second equation is s, which is a displacement. S is equals to ut plus 1/2 at square. Third equation is v square is equals to u square plus 2a into s. So these are the three equation of motion. Now let us know what is the meaning of v, u, s, t and a. Student, here the terms mentioned, u is known as the initial velocity. Whenever the object start its velocity, at that time its velocity is known as the initial velocity u. V means the final velocity or the velocity at time t. S is equals to displacement. A, small a is equals to acceleration of an object. यानी कि small a जो है उसे हम जानेंगे एक्सेलरेशन से. सो दिस आर द नोटेशंस विच इज यूटिलाइज इनसाइड द इक्वेशन ऑफ मोशन. नाउ लेट अस मूव फॉर द डेरिवेशन ऑफ दिस रिस्पेक्टिव इक्वेशन. सो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, v is equals to u plus at. It is called equation for velocity and time relation. Let me change the color. Equation for velocity time relation. V is equals to u plus a into t. So in this equation, the relation between velocity and time is established. That is why this equation is known as velocity time relation equation. So for that purpose, student, first of all we need to understand this graph. Student, in this graph there is a two axes are present. One is a y-axis and second one is x-axis. As my y-axis, I will take the velocity v for reference, and for my x-axis I will take time t for reference. यानी कि मैं y-axis के ऊपर v velocity लूँगा और x-axis के ऊपर मैं मेरा time duration लूँगा. ओके. एंड माई पॉइंट ऑफ ओरिजिन इज O, यानी कि जहाँ से मेरा ऑब्जेक्ट जो है
वो मोशन करना स्टार्ट करेगा, वो मेरा ओरिजिन का पॉइंट होगा। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट कोई वेलोसिटी अटेन करता है, मतलब उसकी वेलोसिटी अगर बढ़ाता है, तो ओ से मेरी जो लाइन है वो इस डायरेक्शन में आगे बढ़ेगी, और अगर उस वेलोसिटी को अटेन करने के लिए जो टाइम लगेगा उसके लिए यहाँ पे मेरी लाइन आगे बढ़ेगी। ओके, बिकॉज एज माई एक्स एक्सिस आई विल टेक टाइम t, and students for my y axis I will take velocity v. Okay, so first I will draw this line, this is straight parallel line. So as you know student, as per the graphical representation of motion, whenever the slope of velocity time curve is a straight line, then the velocity is uniform, means equal change of velocity at equal interval of time. वेलोसिटी जो है वो यूनिफॉर्म मोशन से आगे बढ़ रही है। सो लेट अस एज्यूम एट द पॉइंट ए, यानी कि ए पॉइंट के ऊपर व्हेन द ऑब्जेक्ट इज स्टार्टिंग इट्स वेलोसिटी, इट इज कॉल्ड u, मीन्स द इनिशियल वेलोसिटी u. आफ्टर सम टाइम, से एट अ टाइम t, मतलब t टाइम के बाद जो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है वो अटेन होके b पॉइंट के ऊपर हो जाती है v. सो मैंने क्या किया हुआ है स्टूडेंट्स, इफ यू ऑब्जर्व कि b पॉइंट को मैंने यहाँ पे स्ट्रेच कर लिया, मतलब खींच लिया है, क्योंकि मेरी जो एक्सिस है y एक्सिस, वहाँ पे मैं मेरी वेलोसिटी को इंडिकेट कर सकता हूँ, एंड आई विल इंडिकेट माई फाइनल वेलोसिटी एज v, और वहाँ पे मैं पॉइंट दे देता हूँ e. ओके, उसके बाद एक पॉइंट को मैं यहाँ पे स्ट्रेच कर लूँगा, मतलब u जो है यहाँ से एक लाइन ऐसे खींचूंगा नीचे, ये वाली b पॉइंट से टाइम लाइन के ऊपर, टाइम एक्सिस के ऊपर, और उसके बाद यहाँ से एक लाइन ऐसा खींच लूँगा. ओके, सो माय डियर स्टूडेंट्स, o से लेके a तक का जो डिस्टेंस है वो हम जानते हैं इनिशियल वेलोसिटी u से, और o से लेके e तक का जो डिस्टेंस है उसे हम जानते हैं फाइनल वेलोसिटी v से, बिकॉज एट पॉइंट b माई वेलोसिटी विल बी स्मॉल v. So if I will indicate on the velocity axis, it is denoted by the small v. So the distance from O to A is u. So similarly C से D तक का डिस्टेंस भी कितना रहेगा आपका u, because OA और CD ये दोनों सेम है. So OA को जिससे हम डिनोट करेंगे यानी कि u से, तो CD भी उतना ही होगा. So here I already write OA is equals to CD is equals to U. उसके बाद O से लेके E तक का जो डिस्टेंस है वो क्या बन जाता है, मेरी फाइनल वेलोसिटी V. तो O से जो E तक का डिस्टेंस होगा वो V है, और उसके पैरेलली जो ये डिस्टेंस होगा यानी कि B से C तक का वो भी कितना होगा V, बिकॉज बोथ साइड आर पैरेलल टू ईच अदर. सो हियर आई ऑलरेडी राइट OE is equals to BC is equals to V. Now on a time axis, O to C is my time duration for the velocity. Okay, so OC का जो भी डिस्टेंस रहेगा वो डिस्टेंस कहाँ तक का होगा, A से D तक का, because this both are parallel to each other. So that is why if OC is equals to time duration T, then AD is also equals to T. So that is why OC is equals to AD is equals to T. तो खास ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स कि मैंने जो साइड्स के रेफरेंसेस लिए हैं उसको एक बार ना समझ में आए तो वीडियो पॉज कर लेना और वापस समझना नोटेशंस जो मैंने दिए हैं. नाउ लेट अस अप्लाई द एक्सेलरेशन इक्वेशन. Acceleration is equals to, what is the acceleration meaning? It is the rate of change of velocity. मतलब चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, यानी कि यूनिट टाइम में जो वेलोसिटी चेंज हो रही है उसको हम क्या गिनेंगे, एक्सेलरेशन ए. सो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलोसिटी चेंज होने का रेट यहाँ पे क्या होगा, पहले वेलोसिटी u थी और उसके बाद वेलोसिटी v हुई, तो वेलोसिटी के चेंज को हम कैसे डिनोट करते हैं, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी. सो आफ्टर द एंडिंग ऑफ मोशन द ऑब्जेक्ट अटेन फाइनल वेलोसिटी v, मतलब
BC डिस्टेंस हो गया फाइनल वेलोसिटी, मतलब क्योंकि B से C तक का डिस्टेंस क्या जाना जाता है, स्मॉल v। और इनिशियल वेलोसिटी क्या गिना जाता है, CD। क्यों, CD इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी u। ओके, सो एक्सेलरेशन में चेंज ऑफ वेलोसिटी है, उसके अंदर हम लिख सकते हैं BC माइनस CD। यानी कि मेरे पास BC में से मैं अगर CD को माइनस करूं तो मुझे वेलोसिटी कितनी चेंज हुई वो मालूम चल जाएगा। ओके, डिवाइडेड बाय टाइम t। सो BC यहाँ पे जो हमने लिखा है BC इज इक्वल्स टू V, CD इज इक्वल्स टू U। ओके, सो V माइनस U डिवाइडेड बाय T। अब क्या करेंगे हम, ये हमें मिल गया रिलेशन A इज इक्वल्स टू V माइनस U डिवाइडेड बाय T। नाउ आई विल टेक T ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, on equals to left hand side, so it is on the numerator। so what will be the equation, AT is equals to V minus U। और अगर आप इसको लिखना चाहो सिंप्लीफाई करके तो ऐसा भी लिख सकते हो, U को अगर इस साइड आने दो तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। सो इक्वेशन क्या बन जाएगा, V is equals to U plus AT। इट इज अवर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बन गया। ठीक है, so this is the basic derivation which will be asked frequent times in your examination। okay, स्टूडेंट खास याद रखिएगा, ये जो नोटेशंस मैंने यहाँ पे लिखे हैं, OACD इज इक्वल्स टू U, OE इज इक्वल्स टू BC इज इक्वल्स टू V, OC इज इक्वल्स टू AD इज इक्वल्स टू T, क्योंकि सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन के अंदर भी ये खास काम में आएगा। सो दिस इज द derivation of first equation of motion, which is establishing a relation between velocity and time। second equation for position time relation, पोजीशन और टाइम के बीच का रिलेशन एस्टेब्लिश करने के लिए S इज इक्वल्स टू UT प्लस 1/2 AT स्क्वायर, यानी कि डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में रिलेशन बनाने के लिए जो इक्वेशन होगा उसे क्या कहेंगे, पोजीशन टाइम रिलेशन। तो अभी स्टूडेंट हमने देखा हुआ था, जब भी मैंने आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ समझाया था तो कहा था कि दो पॉइंट्स के बीच में अगर आपको डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है, ठीक है, S, तो उस दो पॉइंट के बीच का, यानी कि इसके अंदर भी सेम ग्राफ जो है आपको दिखाई जो दे रहा है, उसमें A पॉइंट है और B पॉइंट है, और दूसरे इक्वेशन में मुझे डिस्प्लेसमेंट अगर फाइंड आउट करना है S, तो मैं क्या करूंगा, इन दो पॉइंट के बीच का जो एरिया है वो मेरा क्या बन जाएगा, डिस्प्लेसमेंट S। तो स्टूडेंट ये जो पूरा एरिया बन रहा है, यानी कि ये जो शेप बन रहा है, उसका एरिया मुझे फाइंड आउट करना होगा। तो बेसिकली ये एक ट्रेपेजियम बन रहा है, जिसके बारे में आपने शायद मैथ्स के अंदर पढ़ा होगा। आप इसे ट्रेपेजियम लेकर भी गिन सकते हो, और एक ट्रायंगल और एक रेक्टेंगल का एरिया गिन के भी इसे कर सकते हो। बेटर वे इज दिस दैट यू शुड टेक द ट्रेपेजियम, यानी कि डिस्प्लेसमेंट आपको अगर चाहिए तो डिस्प्लेसमेंट के लिए आपको OABC ट्रेपेजियम का एरिया कैलकुलेट करना होगा, क्योंकि इसका एरिया ही आपका क्या बन जाएगा, डिस्प्लेसमेंट S। ओके, सो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू एरिया अंडर ट्रेपेजियम OABC। सो अगर किसी को ना मालूम हो कि ट्रेपेजियम का एरिया कितना होता है, देन आई विल टेल यू। उसका इक्वेशन है, आगे भी आपको काम में आएगा, लिख लीजिएगा। S इज इक्वल्स टू 1/2 मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ पैरेलल साइड, यानी कि ट्रेपेजियम की दो साइड जो एक दूसरे को पैरेलल है उसका समेशन मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड, यानी कि जो दो पैरेलल साइड्स आपने ली है उसके बीच का डिस्टेंस। तो अगर मैं स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे दिखाऊं, सम ऑफ पैरेलल साइड्स, तो इस ट्रेपेजियम में ये साइड और ये वाली साइड एक दूसरे को पैरेलल है, यानी कि OA और BC एक दूसरे को पैरेलल है। सो वी विल डू अ समेशन ऑफ दिस बोथ साइड, OA प्लस BC, ये साइड्स का समेशन हो गया। देन आफ्टर मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स, यानी कि ये दो पैरेलल साइड के बीच का जो डिस्टेंस है उसे हम लेंगे। ठीक है, इट इज OC
C. Okay, the distance between these two parallel side is OC. So what will be the equation? S is equals to 1/2 multiply by summation of two parallel side OA plus BC multiply by OC. Okay, तो जैसे हमने पहले इक्वेशन में OA और BC का जो एक रेफरेंस लिया था, OA इज इक्वल्स टू U एंड BC इज इक्वल्स टू V मल्टीप्लाई बाई OC इज इक्वल्स टू T, तो वो हम यहाँ पे इंप्लीमेंट कर रहे हैं. देखो, OA इज इक्वल्स टू U, BC इज इक्वल्स टू V एंड OC इज इक्वल्स टू T, यहाँ पे मैंने पुट किया हुआ है. देन after doing this U plus V multiply by T, we will put the value of V, because in equation 1 V is equals to U plus AT जो हमने डिराइव किया था, तो यहाँ पे V की जगह पे हम क्या पुट करेंगे? U plus A into T. ठीक है, सो इंस्टेड ऑफ V we will put U plus AT. सो देखिए स्टूडेंट्स, S इज इक्वल्स टू 1/2 U प्लस V की जगह पे हमें क्या पुट करना है? U plus AT. सो हियर इट इज मल्टीप्लाई बाई T. ओके, सो इन नेक्स्ट स्टेप व्हाट वी विल डू, U plus U इज इक्वल्स टू 2U प्लस AT मल्टीप्लाई बाई T. तो इस 1/2 को अगर हम अंदर मल्टीप्लाई कर दे तो 1/2 मल्टीप्लाई बाई 2U, तो 2 से 2 कैंसिल होंगे, बचा क्या? U. और 80 को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 80 डिवाइडेड बाई 2 मतलब 80/2. सो इक्वेशन क्या बनेगा? U प्लस 80 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई T. सो अल्टीमेटली S इज इक्वल्स टू क्या बनेगा? U प्लस 80 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई T. अगर इस T को हम अंदर मल्टीप्लाई करें तो 80 मल्टीप्लाई बाई T क्या हो जाएगा? 80 स्क्वायर, और U से T मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? UT. So ultimately we will get our equation S is equals to UT plus 1/2 AT का square. That it is. This is the second equation of motion. Okay? Equation of position time relation, ऐसा भी आप बोल सकते हो. Third equation for position velocity relation. तीसरे इक्वेशन में हमें पोजीशन और वेलोसिटी का रिलेशन एस्टेब्लिश करना है, तो उसमें भी हम सेम लागू करेंगे. जो ये OABC ट्रेपेजियम है उसका एरिया फाइंड आउट करेंगे, विच इज 1/2 सम ऑफ टू पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड्स. तो जैसे हमने आगे किया वही फिगर वही इक्वेशन, लेकिन एक जगह पे चेंज आएगा. आई विल लेट यू टेल. सो क्या बनेगा? 1/2 U प्लस V मल्टीप्लाई बाई T. तो यहाँ तक स्टेप सेम रहते हैं सेकंड इक्वेशन की तरह. अब हम क्या करेंगे कि जो हमारा पहला इक्वेशन था A इज इक्वल्स टू V माइनस U डिवाइडेड बाई T, तो उसमें से हम T को लेफ्ट साइड ले जाएंगे इक्वल्स टू की, और उसके रिस्पेक्ट में इक्वेशन बनाएंगे V माइनस U डिवाइडेड बाई A. तो ये बन गया T का इक्वेशन. So now we will put the value of T, okay, in our next step. So यहाँ पे देखो 1/2 U plus V as it is, but instead of T we will put V minus U divided by A. Okay? So अब क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में? 2A को हम लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे तो वहाँ पे वो न्यूमरेटर में आ जाएगा, तो यहाँ पे S तो पहले से ही है ही, तो 2AS इज इक्वल्स टू V प्लस U लिखो या तो U प्लस V लिखो, सभी सेम होता है, V माइनस U. सो इस एंटिटी को अगर आप सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा? V प्लस U V माइनस U को V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2A इंटू S. अगर U को इक्वल्स टू के इस साइड ले जाओ तो यहाँ पे माइनस थे तो लेफ्ट हैंड साइड पे प्लस हो जाएंगे. सो अल्टीमेटली यू विल गेट द इक्वेशन V स्क्वायर इज इक्वल्स टू U स्क्वायर प्लस 2A इंटू S. दिस विल बी योर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, which is establishing the relation between position and velocity. Okay? That's it. तो यहाँ पे 3 इक्वेशन के जो मोशन के हैं वो डिराइव होते हैं. अगर कहीं पे ना समझ में आए तो आप मुझे पूछ सकते हो, और
वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हो। चलिए, थैंक यू, वी विल मीट इन अवर नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।